Okay, welcome to sixth episode of Healing Tales, where we bring real stories of transformation through gentle wisdom of batch flower remedies. In today's episode, we have Dr. Saurabh, who is MD pediatrician, batch flower therapist, trainer, and my colleague, who is bridging the world of modern medicine with the healing intelligence of batch flower remedies. Today, we will share with the viewers how batch flower remedies have gently given better solutions for these children and their families, helping them connect, communicate, and bring health in these kids. So, Dr. Saurabh, as a practicing pediatrician, what drew your attention towards batch flower remedies? Can you please explain? Thank you, Padmashri ji, uh, for inviting me for this uh, lecture. So, actually, I always believe in holistic medicine. And as a allopath, we are treating children with allopathy. But few of the disease, like we can say autism, ADHD, there some therapy are available. But I was also looking some alternate therapy that can be given easily and without no side effect. So here वेज फ्लावर थेरेपी प्ले अ मेजर रोल, क्योंकि जब मैंने देखा कि वेज फ्लावर थेरेपी एक फ्लावर से बनी हुई है, नेचुरल है, उसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है, और सबसे अच्छी बात है इट इज वेरी इजी टू टेक। सो ऐसी एक थेरेपी जो जिसके रिजल्ट्स भी अच्छे हों, बच्चे लेने में उसको कोई दिक्कत ना करें। सो यहाँ पे मुझे लगा कि वेज फ्लावर थेरेपी कैन प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। And I can say these drops sometimes, like I used to say to children, these are the magical drops for our children. And they never say no to these drops. So that is really very, कहना चाहिए, uh, uh, very great thing to our children. So we can heal through these natural drops. So nice. So nice to know about this magical drops. Okay. So today here we are mainly grouped to discuss about autism. So can you briefly explain to the viewers what is autism and what kind of emotional patterns do you commonly observe in children with autism? And how these remedies have helped in bringing those shift in the patterns of their emotional behaviors. Yeah, definitely. So autism क्या है? एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है in which the children, they have the two main issues like social communication, and they have repetitive restrictive behaviors. So as a general, if I say five six issues in which we can understand autism very easily, like बच्चे they have speech delay, वो लेट से बोलते हैं, या दे आर हैविंग, दे विल प्ले अलोन, दे विल नॉट प्ले विद अदर चिल्ड्रन। और तीसरा ये कि उनके अंदर आई कांटेक्ट बहुत पुअर रहता है, मतलब वो आंख से आंख मिला के जनरली ये बच्चे बात नहीं करते, दे आर नॉट शेयरिंग देयर इमोशंस। इसके अलावा ये हो सकता है कि दे आर वेरी अपसेट बाय माइनर चेंजेस, अगर उनके खिलौने में कोई चेंज आ जाए, या कोई उनके घर पे जो उनकी हेल्प करने वाली बाई है वो चेंज हो जाए, या स्कूल चेंज हो जाए, सो उससे वो बहुत ज्यादा अपसेट हो जाते हैं। या कई बार इन बच्चों में बहुत सारे सेंसरी इशू रहते हैं, या कई बार ये बच्चे बार बार बहुत सारे रिपीटेटिव मूवमेंट्स करते रहते हैं, जैसे फ्लैपिंग करना, या कोई सॉन्ग है या कोई पर्टिकुलर लाइन है उसको बार बार रिपीट करते रहते हैं विदाउट अंडरस्टैंडिंग। सो ये कॉमन फीचर हमें बच्चों में, ऑटिज्म के बच्चों में देखने को मिलते हैं। लेकिन इनके साथ क्या है, बहुत सारे इमोशनल इशू भी रहते हैं। जैसे these children are very hyperactive, they are very aggressive, sometimes these children may hit other children, they may bite them, or they can throw things, मतलब कुछ भी उनके हाथ में कई बार वो उसको फेंक भी देते हैं, या कई बार वो अपने कहना चाहिए हेड बैंगिंग भी करते रहते हैं, अपना सर ही फ्लोर पे मारना, या
वॉल पे मारना, या बहुत सारी एंजाइटी उनके अंदर है, मूड स्विंग्स हैं, या कई बार उनको बहुत फियर लगता है, जैसे कुकर की सीटी से डर लगना, या कोई लाउड साउंड है उससे डर लगना, या उनकी जो कंसंट्रेशन एबिलिटी रहती है वो कई बार पुअर रहती है, वो दे आर हैविंग पुअर लर्निंग एबिलिटी। सो ये सारे इश्यूज बहुत सारे रहते हैं। इसके अलावा कुछ सेंसरी इशू रहते हैं, जैसे उनको बहुत सारी चीजें पसंद नहीं आती हैं। अगर कोई पर्टिकुलर स्मेल हो सकता है उनको पसंद नहीं आए खाने से, तो वो खाना नहीं खाएंगे। या पर्टिकुलर उनको क्लॉथ्स पसंद नहीं है, एक ही तरह के वो कपड़े पहनना पसंद करते हैं। या टच करना उनको कई बार ऐसे बच्चों को पसंद नहीं रहता है। और कई बार उनको एक कोई स्मेल हो सकता है बहुत ज्यादा अच्छी लगे। सो ये सारी चीजें उनको इमोशनल इशू बहुत सारे रहते हैं। तो इन सब चीजों के लिए वेज फ्लावर थेरेपी, मैं कहना चाहिए बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं जो मैंने बहुत सारे बच्चों को वेज फ्लावर थेरेपी दी है। सो ये दीज जो इमोशनल इशू है दे आर ट्रीटेबल, मतलब उनके ऊपर हम वेज फ्लावर थ्रू काम करें तो ये ठीक हो सकते हैं। सो नाइस। मतलब कई बार पेरेंट्स ऐसे सोचते हैं कि बच्चे हमारे बात नहीं मानते हैं। सो बट इफ वी सी द बैकग्राउंड ऑफ इट, देर आर सो मेनी डिफिकल्टीज द चाइल्ड इज हैविंग विच द पेरेंट्स आर माइट बी नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, है ना? यस। तो it is so insightful that parents, I think it is a big eye opener for parents as well, huh? या And I know, Dr. Saurabh, you have treated so many cases of autism, and you have seen a great success as well. Huh? So, can you share some real cases that you have treated where batch flower remedies made a visible difference in child with autism? Have you observed any changes in the child's ability to, like, the emotional symptoms that you said, like the ability to connect, eye contact banana, or expressing, and emotionally not reacting but responding, regulating after using these remedies? What changes you have seen, and please give some insight. या सो मैं शुरू करना चाहूंगा कि लास्ट ईयर जब मतलब मेरे पास एक बच्चा ट्रीटमेंट के लिए आता था फ्रिक्वेंटली, सर्दी खांसी जुकाम। तो हमें पता भी था कि उसको ऑटिज्म है, लेकिन जब मैं उस समय बैच फ्लावर थेरेपी प्रैक्टिस नहीं करता था तो आई नेवर टोल्ड एनीथिंग टू देम कि वो कहीं से जो भी थेरेपी ले रहे थे दैट वाज कंटिन्यू। सो जब मैं ये थेरेपिस्ट बना, ट्रेनर बना, सो जब मेरे पास आए देन उस समय उस चाइल्ड एज वाज अराउंड 5 और 6 years, एंड दैट चाइल्ड हैविंग स्पीच डिले, डेवलपमेंटल डिले, एंगर इशू बहुत ज्यादा थे उसके अंदर। ही वॉज नॉट सिटिंग एट वन प्लेस जब वो सीखने के लिए जाता था या क्लास में भी जाता था तो। और बहुत जिद्दी टाइप का था, पेरेंट्स बोलते थे एक चीज की जिद पकड़ता है तो कंटिन्यूअसली करता ही रहता है, दूसरे बच्चों को धक्का मारना। Hmm. और कुछ वर्ड्स वो जरूर बोलता था, लेकिन वो वर्ड्स भी कई क्लियर नहीं होते थे, और आई कांटेक्ट भी पुअर नहीं था। So after that, I gave veg flower therapy. Like they came after 1 month. Then they told me that was my first case. So they told me कि हाँ अभी जो ये वर्ड्स बोलता है वो थोड़े क्लियर है। अभी Hmm. Hmm. आई कांटेक्ट भी 20% करीब इम्प्रूव हुआ है। Hmm. इसका एंगर भी कम हो गया है। अभी जो बहुत ज्यादा भागता था वो भी अभी कम हो गया है। बट अभी कुछ रिपीटेटिव बिहेवियर्स भी अभी भी कंटिन्यू है। सो Hmm. वी कंटिन्यू थेरेपी फॉर 2-3 months। देन उसके जो कहना चाहिए स्पीकिंग स्किल्स थी वो काफी इम्प्रूव हुई, आई कांटेक्ट इम्प्रूव हुए। मैंने भी देखा जब वो मेरे पास आता था तो अभी वो बेहतर आई कांटेक्ट बना रहा था पहले से। Hmm. और जो भी उसको इंस्ट्रक्शन दे रहे थे वो सुनता था। मतलब हो सकता है वो एक बार में ना सुने, बट सेकंड थर्ड टाइम में वो उनको सुनता था। तो मेरा यही मानना है कि वेज फ्लावर थेरेपी से ये चेंजेस पॉसिबल हैं। एक सेकंड केस और अभी जो मेरे पास 3 महीने पहले आया, वो दैट चाइल्ड वाज अराउंड 7 year old एंड दे वर टेकिंग थेरेपी फॉर लॉन्ग टाइम, 2 to 3 year 4 year से करीब वो थेरेपी ले रहे थे, लेकिन कोई चेंजेस वो नहीं आ रहे थे। तो इंस्टाग्राम पे उन्होंने मेरा पोस्ट देखा तो वो थेरेपी लेने के लिए आए।
और मेरे मतलब हॉस्पिटल में एक लड़की है, उसकी सिस्टर का ही वो बेटा है, तो देवर टेलिंग कि अरे हमें मालूम ही नहीं है कि आप ये सब भी करते हो। हम्म, तो उस बच्चे के साथ क्या था कि ही वॉज वेरी मच हाइपर एक्टिव, नॉट स्लीपिंग टिल 3 AM, मतलब वो हम्म, 2 3 4 उनको बजते ही थे। हम्म, इसके अलावा उसको मीठा खाने की बहुत ज्यादा कहना चाहिए रज मतलब वो बहुत ही ज्यादा, कहीं अगर चीनी दिखाई दे जाए तो वो चीनी खा जाता था, या कुछ पर्टिकुलर ऑयल है या क्रीम है, उसकी स्मेल उसको बहुत अच्छी लगती थी। तो वो कई बार उनको ड्रिंक कर लेता था या खा लेता था। इसके अलावा उसको कुछ जीआईटी इशू भी थे, मतलब उसको लूज मोशन रहना, बहुत मतलब कोई आई कांटेक्ट भी बहुत पुअर था। सो बहुत सारे इशू उनको थे। उसकी मदर ने बोला कि मैं तो पिछले 3 4 साल से सोई नहीं हूँ, मतलब वो क्योंकि 3 बजे सोना, 4 बजे फिर सुबह उठ के अगले दिन उनको काम करना रहता है। सो फिर हमने उसको वेज फ्लावर दिया, एंड दिस लाइक रिजल्ट्स वर मैजिकल, मतलब जैसे मैंने बोला मैजिकल ड्रॉप्स। तो बहुत ही मैजिकल रिजल्ट्स थे। चीनी खाना उसने बंद कर दिया, ऑयल क्रीम खाना बंद कर दिया। ओहो, उसकी जो एक्टिविटी थी वो भी बेटर हो गई, मतलब पहले से। और लूज मोशन जो उसको बार बार जाना पड़ता था वो भी इम्प्रूव हो गए। हाँ, कुछ आदतें फिर भी अभी वैसी ही थी, जैसे उसको कुकर की सीटी से डर लगता था, तो वो अभी भी कंटिन्यू चल रहा था। सो बहुत सारे रिजल्ट्स हमें कई बार कहना चाहिए बहुत ही मैजिकल मिलते हैं, एंड समटाइम्स इट इज डिफिकल्ट टू बिलीव कि हाँ 1 महीने में भी अभी भी वो मेरे पास आ रहे हैं थेरेपी लेने के लिए। बीच में शायद वो लोग बाहर चले गए थे। तो अभी काफी रिजल्ट्स हैं। वो बोलते हैं कि हम इसको बोलते हैं तो बैठता है, आई कांटेक्ट भी अच्छा है। तो दूसरा इशू ये कि अगर इन बच्चों में ये इशू रहते हैं तो इनके लिए थेरेपी लेना बहुत मुश्किल है। अगर वो बच्चा हम्म, बैठेगा ही नहीं, हम्म, आपको आई कांटेक्ट ही नहीं करेगा या सुनेगा ही नहीं, तो आप कैसे उसको थेरेपी दोगे? हम्म, कैसे आप उसको ऑक्यूपेशनल थेरेपी दोगे? कैसे आपको एबीए थेरेपी दोगे? कैसे आपको उसको स्पीच थेरेपी दोगे? सो हम्म, बैच फ्लावर थेरेपी इज वेरी, कहना चाहिए, हेल्पफुल इन इस तरीके से। बहुत अच्छे रिजल्ट्स उसमें आते हैं। उसमें टाइम तो लगता है उसमें, लेकिन एटलीस्ट बच्चा सुनेगा, बैठेगा, तो उसके इम्प्रूवमेंट के चांसेस भी अच्छे होंगे। hmm. So basically, what you're telling is that the aggression in child will come down, or ये eye contact बढ़ेगा, and the यस। child will start listening and responding, reciprocating, है ना? So when all this happens, even the other therapies like the speech therapy and etc., all that you said, so that will also start working on the child, and those या therapists will be able to better work with the child. या वो जितना टाइम लेते हैं उन थेरेपी को काम करने में, तो शायद हो सकता है वो जल्दी हाँ, इफेक्टिव हो। कम हो जाए वो टाइम. हाँ, जल्दी टाइम में वो बेटर हो जाए। Very nice, very nice. And in this whole journey, I know that just treating the child is not enough. So we would need the help and support of parents. So how do you take the parents buying? How do you take the parents along in this journey? Do you give remedies for parents also, or how do you work with parents? तो ऑटिज्म के साथ क्या है कि इट इज नॉट ओनली द चाइल्ड, पेरेंट्स ऑल्सो गोइंग सम इमोशनल टर्बुलेंस। क्योंकि उनको समझ में नहीं आता कई बार कि बच्चा चाहता क्या है, उसको एंजाइटी हो रही है या उसको क्या दिक्कतें हो रही हैं। कई बार उनके लिए भी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है अंडरस्टैंडिंग करना, उनको थेरेपी लेके जाना, उनको वापस लेके आना। तो उनकी लाइफ स्टाइल में भी बहुत ज्यादा चेंजेस होते हैं, जिसकी वजह से उनको भी बहुत ज्यादा एंजाइटी या कहना चाहिए फियर, ये सारे इशू उन लोगों को भी हो सकते हैं। सो मेरा ये मानना है कि ऑटिज्म के बच्चे के साथ पेरेंट्स की थेरेपी भी बहुत जरूरी है। Hmm. उनकी काउंसलिंग बहुत जरूरी है। उनके कहना चाहिए बैच फ्लावर थेरेपी तो डेफिनेटली देना ही चाहिए। Hmm. क्योंकि अगर उनको ऐसा लग रहा है कि अगर हम होपलेस हो रहे हैं तो वो आगे कैसे थेरेपी करा पाएंगे, या उनके अंदर बहुत एंजाइटी हो रही है Hmm. तो कैसे वो आगे कंटिन्यू कर पाएंगे। सो
अगर उनको गिल्ट फील आ रहा है कि हमारी वजह से शायद हमने उसको प्रॉपर केयर नहीं करी, इसकी वजह से शायद और उसको ये सारी दिक्कतें हो रही हैं। सो कई बार ऐसे पेरेंट्स भी होते हैं जिनको गिल्ट हो जाती है। एक बार मेरे पास बिहार से एक फोन आया था हम्म थेरेपी के लिए। ऑल तो थेरेपी नहीं ली उन्होंने, लेकिन मुझे उन्होंने बताया कि इस बच्चे मतलब जो ऑटिज्म का अभी 3 साढ़े 3 साल का बच्चा है, उसकी केयर करने में पेरेंट्स को हाइपर टेंशन हो गया। हम्म इवन उनकी शुगर्स भी बढ़ने लगी हैं। तो उन बच्चों की केयर करने में पेरेंट्स भी बहुत ज्यादा अफेक्टेड हो रहे हैं। हम्म सो कहीं ना कहीं उनको भी थेरेपी की जरूरत है, उनको भी काउंसलिंग की जरूरत है। एंड डेफिनेटली अगर वो अच्छे रहेंगे तो बच्चे की थेरेपी भी अच्छे से करा सकेंगे। सो ट्रू, सो ट्रू। हाँ। और यस। हाँ, तो मतलब डॉक्टर, एज अ मेडिकल practitioner, as a doctor, how do you reconcile the subtle and intuitive modality of healing like batch flower remedies with your clinical practices? I mean, please help us build the trust with the skeptical viewers जो समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या मोडालिटी चूज करना है, एंड हाउ दे कैन गेट ट्रस्ट ऑन बैच फ्लावर रेमेडीज। So, in my clinical practice, I have used veg flower therapy in many other cases also. हम्म Like एक केस था बेड वेटिंग का, मतलब मेरी कजिन सिस्टर का बेटा ही था। हम्म So, for that child, I used veg flower therapy for 2 months, and the results were very remarkable. हम्म वो जो बेड वेटिंग थी उसकी मतलब काफी हद तक कम हो गई। और अभी पिछली बार मेरी बात हुई थी तो बोले कि अभी बिल्कुल ही मतलब अभी उसको बेड वेटिंग का कोई इशू नहीं है। हम्म उसकी एज एक्चुअली 3.5 नहीं थी, 5.5 ईयर्स थी। दूसरा एक केस मेरे पास आया ओसीडी का। दैट चाइल्ड वाज 2 ईयर्स ओल्ड, एंड वो मेरे पास वैक्सीनेशन के लिए आते थे फ्रिक्वेंटली ट्रीटमेंट के लिए। सो मदर टोल्ड कि अभी ये बहुत 1-2 महीने से ना बहुत हाइजीन को लेके, साफ सफाई को लेके बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट टाइप से हो गया। मतलब एकदम साफ कपड़े पहनने हैं, कहीं पे मिट्टी नहीं होनी चाहिए, अगर जहाँ पे खेलेगा वो वहाँ पे कोई धूल नहीं होनी चाहिए, और जो भी खिलौने हैं वो एकदम साफ होने चाहिए। तो वो फिर ऐसा समझ में आया कि ये बच्चे को ओसीडी के सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं। हम्म तो उस बच्चे को मैंने वेज फ्लावर दिया 2 महीने करीब। सो उस मदर ने फिर बोला कि हाँ अभी क्या है, अभी ये बेटर हो गया है, अभी उतनी ज्यादा डिमांड नहीं करता साफ सफाई की। आ, कहीं पे अगर मिट्टी है तो उसके साथ भी चल जाता है, थोड़ा बहुत कहीं पे धूल है। और बट अभी उसकी एक आदत अभी बाकी है कि अभी भी फुल शर्ट पहन के ही खेलता है। हम्म हम्म तो वो भी मुझे लगता है शायद 1-2 महीने में चली जाएगी। हम्म एक और केस मेरे पास था पिकी ईटिंग का। पिकी ईटिंग का क्या था, मेरे एम्प्लॉय है हॉस्पिटल में। सो उसने बोला कि मेरा बच्चा ना केवल आलू या आलू को पराठा या हम्म आलू की जो भी चीजें होती है केवल वही खाता है, उसके हम्म अलावा और कुछ नहीं खाता। हम्म सो आई थॉट वी शुड ट्राई वेज फ्लावर थेरेपी। सो आई गेव वेज फ्लावर थेरेपी फॉर 15 डेज इनिशियली। सो उसमें कुछ चेंजेस आए, उन्होंने बोला कि हाँ अभी थोड़ा दाल चावल भी खाने लगा है। फिर आई सो नाइस। कंटिन्यूड वेज फ्लावर थेरेपी। देन उन्होंने बोला कि नहीं अभी पोहा भी खा रहा है, हम्म अभी कुछ कुछ रोटी भी खाने लगा है। हम्म सो अभी बहुत सारे चेंजेस उसमें हमने देखे पिछले 2 महीने में। अभी वो ऐसा है कि जो चीज उसने पहले कभी खाई नहीं थी, अभी वो सारी चीजें खाने लगा है। एक स्टैमरिंग का केस था, एक लड़की थी 3.5 साल की 4 साल की। वो बोलती तो ठीक थी लेकिन वो क्लियर नहीं होता था, हम्म समझ में नहीं आता था कि वो क्या बोल रही है। हम्म सो उसमें भी बैच फ्लावर थेरेपी की 1 महीने में काफी कहना चाहिए 30-40% इम्प्रूवमेंट दिखाई दिया। हम्म ऐसे ही स्किन के बहुत सारे केसेस हैं जिनमें कई बार लोग 4-4 5 महीने से ट्रीटमेंट लेके आते हैं, फिर उनको थेरेपी देते हैं, 1-2 महीने में वो काफी हद तक ठीक हो जाते हैं, 80-90% तक। हम्म सो बहुत सारे केसेस में जहां मुझे लगता है कि एलोपैथी थोड़ी सी वहां पे लैगिंग है, तो मैं वहां पे वेज फ्लावर थेरेपी डेफिनेटली यूज करता हूँ। और कहना चाहिए 80-90% केसेस में अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। कई बार 1-2%, एक 10-20% केसेस में
कई बार थोड़ा सा या तो टाइम लगता है, या हो सकता है कि वो प्रॉपर ना लेते हुए कुछ रीजन हो, उनमें रिजल्ट्स नहीं दिखाई देता, अदरवाइज इट इज शोइंग वेरी गुड रिजल्ट्स। Yeah, so nice and so inspiring, your stories. So, finally, Doctor, what message you would offer to parents of these children with autism or learning difficulties या तो फिर fuzzy eating जो आपने समझाया. So, like this, if there are like multiple issues with children, uh, and parents who are like exhausted, lost hope, तो what is your message for them? तो स्पेशली जो ऑटिज्म के बच्चे हैं, एडीएचडी के बच्चे हैं, तो मैं कहूँगा पेरेंट्स के लिए कि पेशेंस बहुत इम्पोर्टेंट है उनके लिए। वो क्योंकि इन सब थेरेपी में टाइम लगता है, मतलब धीरे धीरे ही बच्चा इम्प्रूव करेगा, मतलब ओवरनाइट या 2-3 महीने में बहुत ऐसे एनकरेजिंग रिजल्ट्स नहीं आते। कई बार 6 महीने, साल, 2 साल, 5 साल लगते हैं बच्चे को इम्प्रूव होने में। बट ये ऐसी चीजें नहीं है कि इनमें इम्प्रूवमेंट नहीं दिखाई देंगे। डेफिनेटली पेरेंट्स नीड पेशेंस Hmm. एंड पॉजिटिविटी। Hmm. उनको थोड़ा पॉजिटिव माइंडसेट से ही काम करना पड़ेगा। Hmm. एंड वी कैन से प्रोफेशनल support also needed, professional support from the pediatric side also, or professional support from batch flower therapy side also. So ये सारी चीजें बहुत इम्पोर्टेंट है, अगर वो चाहते हैं कि हमारे बच्चे में इम्प्रूवमेंट हो। क्योंकि अ, कहीं ना कहीं एक जो पेरेंट्स हैं उनके लिए भी ये एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन हो जाती Hmm. है। सो बिल्कुल. कहीं उनको अपना भी ध्यान रखना है। दे Hmm. शुड डू सम फिजिकल एक्सरसाइज, दे शुड डू सम मेडिटेशन, दे कैन यूज बैच फ्लावर थेरेपी ऑल्सो। Hmm. सो पेरेंट्स को कहीं ना कहीं एक कहना चाहिए पेशेंस, पॉजिटिविटी और प्रोफेशनल सपोर्ट, ये सब चीजों का ध्यान रखते हुए हम इन सब चीजों से बाहर निकल सकते हैं। So nice, so well said. And thank you so much, Doctor, and for sharing your wisdom and experience with our viewers. Like your work stands as a beautiful reminder that, true healing is beyond just evidence-based medicine, and it allows our viewers to gain more confidence in alternative healing. So, to every parent who are watching this video, and to all our viewers, not just parents, right? To all our viewers, I have two things to offer you. If you are the one who are looking for health for yourself, feel free to book a consultation with any one of us. Our therapists are trained to provide a safe and confidential space in the consultation. And they can send across the remedies as well wherever you are, and you can start taking the medicine. So this is about the consultation, and I also want to say we don't need any medical background. Like I don't have any medical background, but yet I am also treating a couple of autism kids and many more adults, of multiple difficulties, physical health issues, emotional health issues. Yeah, so all this. And also, if you are looking to become therapist yourself, see, health is always a journey. So, if you want to take that next step of you becoming therapist so that you can treat people around you, I tell that that would become the best decision. And in just 5 days, 2 hours each day, you can also become Government of India certified batch flower therapist. Finally, I want to remind you that autism is not just a condition, it is a journey. And every journey can be made gentler, deeper, and more connected through the awareness and support. Huh? So, not just autism, but for any physical, mental, emotional, or behavioral health issues, feel free to reach out to us. Our contact number is displayed next to our name in the video, and also you can reach out to VR website. Details of it is mentioned in the description of this video. So if this story has moved you or have given you hope, please help us share this video with more viewers.
Uh, we'll see you again with more such real stories from the healing tales. Until then, stay tuned. Trust that wisdom of healing is from within. Okay? Thank you so much. Thank you, Padmashri, for inviting for such nice talk. Thank you. Yeah. Thank you, Doctor.